Started recording the session. Hope my video device is visible to you guys. Face to this. Okay, my presentation. I lock up the slides. Face presentation. So okay, fine. So welcome to the session, and today's session is all about indicators and oscillators. We learn about the different kind of indicators which are available in market and how we can use it for our betterment for finding out the cases. So far, this session is getting recorded and also being streaming live on YouTube channel. So last session was missed out to be uh, available on YouTube, and also the recording was not on, so it is completely missed in between. So that was an interesting session because it was my favorite topic to discuss about different patterns there. But today's topic is more or less supportive things to what we are vouching for there in the market, and then want to take different confirmations from. Okay, and to start with the session, how many of you are aware these indicators and oscillators are what kind of things that gives us different aspects about the movement of the prices? Anybody is aware of indicators and oscillators? किसी को कुछ पता है, आइडिया है? No, sir. Not at least no. Is it? Anyways, so in technical analysis, these are the lagging uh, or lagging what do you say, lagging things, I mean lagging supportive aspects which shows, which gives you certain idea about where is the price and what is happening there in the market. They are never going to be used for confirming entry exit scenario. Okay, only thing is you can very well understand on the certain applicable methods where you can do the pyramiding or can define the exit conditions with reference to this all indicators and oscillators. Okay, so let me start with the detailing of indicators and oscillator here. uh, So what is this is a kind of moving averages we already have seen. Moving averages are technical indicators जो प्राइस की मूवमेंट को स्मूथन आउट करता है. हाउ व्हाट आर द वेज एंड मीन्स वी कैन डू इट देयर आई विल show you practically as well. It also shows the overall trend of commodity or say stock. Okay, तो इस केस में वो जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है वो उसमें मिटिगेट हो जाती है. सो दोज आर द स्मूथ लाइंस. हाउ दे वर्क्स ऑन द चार्ट विल शो later on. So on the front of moving indicators, there are basically simple moving averages and exponential moving averages. So simple moving averages, it is very easy to understand the average of closing prices of say selective period. Say 20 days simple moving average is a average of 20 days closing prices. So say ये
SMA कैसे बनता है, there is a line you can see on the chart where you can see the SMA happening as a continuous line, which is say if of 20 period duration, that will show the averages of previous 20 days. And same case is with exponential. तो वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या है, वो वेटेड मूविंग एवरेजेस है, तो गिव्स मोर वेटेज टू द रिसेंट प्राइसेस. तो मूवमेंट अगर प्राइस में ज़्यादा रहेगी तो लेटेस्ट प्राइस को ज़्यादा वेटेज है. फॉर एग्जांपल अगर 20 डेज़ या 10 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे, तो चलो 10 डेज़ का लेंगे, तो 10 डेज़ में द नियरेस्ट डे का जो वेटेज है इट विल बी मोर कंपेयर टू द लास्ट sample, that is the 10th date weightage. So in that sense exponential are more receptive, more vulnerable to the market movements. But हाँ, ये जल्दी indicate करते हैं compared to simple moving averages, because simple moving averages are taking no weight of the current scenario, and that's where the exponential moving averages gives us better idea about what to do with मार्केट मूवमेंट्स इन करंट सिनारियो. तो एडवाइजेबल है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज़ करने के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13 डे का एक मूविंग एवरेज जो लाइन दिख रहा है किसी एक स्टॉक के अगेंस्ट में, ईशर मोटर्स का एक स्टॉक है, फ्यूचर स्टॉक दिख रहा है, उसमें यू कैन सी दैट इज़ एन सिंपल मूविंग एवरेज showing 13 days का average. So whatever line it is showing, it's at given point in time it is an average of previous 13 days closing price of the stock. The other example would be of strategic purpose perspective. The 30 moving average, if crossing by the 20 moving average, 20-day moving average in upper direction, then you can have a proper entry or something. So the combination of moving averages is being taken for as an indicator to have an entry specifically. Few of us are using this, but it is not actually applicable the way it should. मतलब ये जो दिखा रहा है तो वो एवरेजेस की डिटेलिंग है जो चार्ट पे दिखती है, but is it a signal which is giving you the confirmation to have an entry or exit? Actually it is a supportive thing to whatever conviction you are carrying along with you. तो इंडिकेटर्स के बेस पे कभी कोई एंट्री एग्जिट नहीं बनती है. दे आर द सपोर्टिव थिंग्स टू एनी ऑफ द स्ट्रेटेजीज यू आर अप्लाइंग. ओके, सो गोइंग फर्दर, अभी स्ट्रेटेजीज कैसे बिल्ड होती है. सो देर आर थिंग्स लाइक कॉल एज गोल्डन क्रॉस ओवर एंड डेथ क्रॉस ओवर. What is golden crossover? Which generates buy signal, so called, when a short term moving average crosses above the long term moving average. Example है 50 days का exponential moving average crossing 200 days का exponential moving average. तो वहाँ पे there are probability that the stock will be moving faster as because the current price is far more advanced than the previous 200 days moving price. So average price बढ़ रहा है. That's where that is the signal generated. It is called as golden crossover. We'll see example by example here. Death crossover generates the selling signal. Again, short term moving average crossing below the long term moving average. Example same as a 50 moving exponential moving average crossing 200 EMA is generating a sell signal. Okay, so these are different strategies being formulated in the market with the help of moving averages. So here you can see this moving averages, blue line shows 5 days, far more magenta line is showing 13 days, and red line of a moving average is showing 26 days moving average scenario. So the point indicated here shows the buying signal generated on the basis of crossing over of the moving averages along with the price action here. But whatsoever may be the conviction here, it has to be tested by other factors. So ऐसा नहीं है कि खाली और खाली क्रॉस ओवर के बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया. और यहाँ पे ऑन द स्ट्रेटेजी बेसिस यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है व्हेन लो टाइम फ्रेम सिग्नल, लो टाइम फ्रेम
मूविंग एवरेज इज क्रॉसिंग द हायर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज. सो 5 की मूविंग एवरेज 13 और 26 की मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करे तो यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होता है. नाउ now this is a death crossover, and death crossover indicates that there is a cell signal generated. So here you can see the cell signal generation point depicted, but the actual crossover has happened at the top, where you can see 5 ka moving average line is crossing 13 and 26 in the downstream. So पहले के 4 जो बड़े रेड कैंडल है उसके बीच में वो क्रॉस ओवर हुआ है. So sell signal is not generated there, but on the second iteration when the price moves or price comes to nearer to that moving average clutter, where there is a sell signal generated. So on the sell side, first the crossover has to happen, and then once the retesting is done, there is a sell signal generated. होप ये सब जो मैं समझा रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. विल सी प्रैक्टिकली. कोई मुझे फीडबैक दे तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में आसानी होगी. Yes, understood. ठीक है. सो अगेन ऑन द मल्टीपल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की जो हम बात करें, जहाँ पे 5 वाला मूविंग एवरेज इज क्रॉसिंग एट मल्टीपल, मतलब 5 वाला 13 और 26 को भी क्रॉस ओवर कर रहा है. ऑन द सेड पॉइंट it is showing that 5 is crossing over 13 and 26 moving average, and that's where the Sangam signal is getting generated. Actually it's just an indicative of what is happening in the market. Then the other indicator is RSI. Many of you must be aware of or maybe using it frequently, those who are doing the technical analysis. It's a momentum indicator, and it's having maximum value between 0 to 100. It is ranging between 0 to 100. Normally when overbought situation is seen above 70, and oversold situation seen as a below 30 RSI levels. 50 is a trend strength indicator. The RSI value 50 shows that there is a either side momentum available or going to go further above. So how this RSI is getting used? तो उसमें आप देखोगे तो जो ग्रे कलर से मार्क है वो लेवल स्मार्ट है 70 एंड 30 राइट साइड, जहाँ पे RSI का नीचे ग्राफ है और ऊपर चार्ट का ग्राफ है उसके सामने. तो यहाँ पे RSI जो दिखा रहा है ओवरबॉट सिचुएशन और ओवरसोल्ड सिचुएशन, जहाँ अगर वो 30 से नीचे रहेगा तो ओवरसोल्ड सिचुएशन में होता है. तो 50 इज़ अ मिड लाइन फॉर RSI, वेयर below 50 is called to be a weak trend and above 50 is called to be the strong trend. So ये big weak trend or strong trend has to be confirmed with many other aspects. You can see over here the moving average crossover when the RSI is crossing 50 zone. So जहाँ पे हमने वीक जोन लिखा है ना मूविंग एवरेज के, उसमें ओवरसोल्ड लिखा है, उसके बाद जब वो 50 का क्रॉस ओवर आता है तो वहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी अपना रंग दिखा रही है. देखो, सो लोअर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज इज ऑल्सो मूविंग अबव द हायर टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज, and at that point in time RSI is also crossing the 50 level. But again you can see it is also retesting the RSI level 50, and also the price action is happening in the same way. And then when it is getting support at a higher time frame with a so called retesting zone, and then the price movement is happening in the one direction. तो ये RSI का यूज़ एज ए सपोर्टिव इंडिकेटर इस तरह से यूज़ किया जाता है. डज दैट मीन कि जब कभी RSI 70 को क्रॉस कर जाता है, सो कॉल्ड देयर इज ओवर बॉट सिचुएशन वेयर द लिक्विडिटी इज़ फार मोर अवेलेबल इन द मार्केट, ऐसा बोला जाता है. तो हमें स्टॉक सेल आउट करना चाहिए. दैट डजंट मीन दैट वे, बिकॉज maybe if the RSI is above 70, it is quite possible that stock will also be moving in a one direction or in the favorable direction throughout the 10 year, and then we may miss the bus in case if it is moving far away from this zone.
तो ऐसा नहीं है कि वो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट सिचुएशन में हमें कोई एग्जिट डिसीजन लेना चाहिए. सो RSI इज जस्ट एन इंडिकेटर ऑफ the market conditions. It is not confirming again whether you should take entry at specific level, but it is confirming whether if you are taking a right entry or not, or somewhere you can confirm your trades on the basis of different parts that you are falling in. So आगे चलते हैं. There are strategies based on RSI and moving averages. तो एक स्ट्रेटेजी ये है कि when price closes above 13 moving average, the and RSI is greater than 50, and stop loss will be moving average 13 plus 1% either side. मतलब एंट्री के लिए अगर देखते हैं या तो बाय के लिए देखेंगे तो जो 13 डेज का मूविंग एवरेज है उसके 1% नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा. एंड एग्जिट जब कभी प्राइस मूविंग एवरेज 13 के ऊपर क्लोज होगा. ये एग्जांपल ऐसा सोचो, ये सेल साइड का एग्जांपल है. व्हेन इट इज़ क्रॉसिंग द 13 सिग्नल, RSI यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन से नीचे आ रहा है, तब एक सेलिंग सिग्नल जनरेट हुआ. उसके साथ आप देखोगे राइट साइड की बात करो जहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, वहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग है. बेरिश एंगल्फिंग के बाद RSI की वैल्यूएशन जो है वो 70 के नीचे आने लगी. यहाँ पे 13 का मूविंग एवरेज क्रॉस डाउन हुआ, तो वो क्रॉस डाउन के टाइप पे आप सेल एंट्री लोगे, और जब कभी वापस वो रीटेस्ट होगा वहाँ पे एग्जिट लोगे. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज. ऑन द बाय साइड वेर यू कैन सी नीचे हैमर है. व्हेन द ट्रेंड इज गेटिंग एग्जॉस्टेड एंड देयर इज अ हैमर, सो एंट्री हैपन्स देयर एट when it is crossing 13 moving average, and you can take an exit upon the different strategies, whether the 13 एवरेज मूविंग एवरेज रीटेस्टेड, जहाँ पे रीटेस्ट हुआ अगर जहाँ पे एंट्री ली आपका, तो स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा. बट ऑन द वे ऑफ राइडिंग द स्टॉक, वहाँ पे रीटेस्टिंग हमेशा होती है, एंड देन यू कैन टेक अ री एंट्री और समथिंग जहाँ पे आपको एंट्री लेने के बाद अच्छा खासा अप ट्रेंड भी ड्राइव करने के लिए मिलेगा. सो दिस इज़ वॉट अबाउट द RSI एज ए होल अलॉन्ग विथ मूविंग एवरेज. तो RSI का जो रेंज ट्रेडिंग है वो भी एक टाइप का ट्रेडिंग रहता है, जहाँ पे स्कैल्पिंग होता है या शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स बन सकते हैं. रिसेंट केस में अगर आप देखेंगे तो देर आर डिफरेंट स्टॉक्स मूविंग इन साइडवेज डायरेक्शंस. साइडवेज डायरेक्शन स्टॉक्स में आप नीचे के पॉइंट पे एंट्री लोगे, वहाँ पे देखोगे कि RSI भी एक स्पेसिफिक जोन में घूमता है, और ऊपर के जोन में आप एग्जिट लोगे. सो दोज आर scalping trades, or are the few days trade where you can earn certain amount of money. So यहाँ पे different buy opportunities और sell opportunities generate होती है. So you can see in the rectangle box where the price moves in a specified range, and so as the RSI. So if RSI and range are bound by the prices, you can do the strategy on the basis of this. The lower side of the band you can buy, and the upper side of the band you can sell. यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज कैसे बनेगी, जैसे एक बाई सिग्नल के ऊपर आपने बाई किया, जहाँ पे RSI मान लो अपर बैंड को टच हो रहा है, वहाँ पे आपने सेल किया, मतलब जो बाई किया था वो सेल किया. नाउ अगेन यू आर सेलिंग one lot here, and then you can ride up to the lower band of the RSI, and so as the price. So accordingly you can exit the position and then take a buy entry. That's how these trades are happening with the RSI range trading. So this is also one of the style of trading. Then comes the moving average convergence and divergence indicator. It's a momentum indicator again, trend plus momentum indicator. MACD बोलते हैं इसको. नॉर्मली ये क्या दिखाता है, ट्रेंड की डायरेक्शन दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, रिवर्जन्स दिखाता है, और बाय और सेल सिग्नल भी जनरेट करता है. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती है जो हमने आगे के इंडिकेटर्स देखे, जैसे मूविंग एवरेजेस और RSI. ये दिस इज़ मोर और लेस combination of different moving averages and showing the convergence or divergence depending upon the market situations. So also it is covering the RSI aspect, but one can utilize this MACD as a single indicator for making confirmation of the trade. ये कैसे काम करता है, जैसे
मैकडी में देर आर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑफ 12, 26 एंड 9. एक मैकडी में एक लाइन है 12 ईएमए की और 26 ईएमए की, दो लाइन होती है. सिग्नल लाइन होती है 9 ईएमए ऑफ मैकडी लाइन. सिग्नल लाइन मतलब तीन लाइन होती है, इसमें से 12 और 26 की एक मैकडी लाइन बोलते हैं, एक 9 ईएमए की एक मिड मैकडी लाइन सिग्नल लाइन बोलते हैं, और एक हिस्टोग्राम होता है. तो वो हिस्टोग्राम रहता है प्राइस के स्ट्रेंथ के हिसाब से या तो वॉल्यूम के स्ट्रेंथ के हिसाब से. ये सब ऑलरेडी उसमें दिखता है मैकडी के चार्ट पे. वील सी फर्दर. उसमें मैकडी लाइन एक फास्ट लाइन होती है, एक सिग्नल लाइन, एक स्लो लाइन होती है, और हिस्टोग्राम दिखाता है मोमेंटम. विल सी कैसा दिखता है चार्ट पे. यू कैन सी हियर जहाँ पे नीचे सब इंडिकेट किया है, ऊपर चार्ट की वैल्यूएशंस है. वेयर यू कैन सी द मैकडी लाइन, द ब्लू कलर लाइन, इट इज कॉल्ड एज अ मैकडी लाइन, and the signal line, the red color line. So, and there is a histogram available, red and blue mark, sorry, red, green mark and red mark से histogram दिखाया है. So इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो मैंने बताया वो वहाँ पे रहते हैं. और इसके बेसिस पे बाई सिग्नल सेल सिग्नल कैसे जनरेट होता है. when MACD line crosses above the signal line, then momentum turning bullish. This is how the buy signal is getting generated. And on the sell side, MACD line crosses below the signal line and momentum turning bearish. तो ये इस हिसाब से सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है. ये कहाँ पे काम करती है, जो ट्रेंडिंग मार्केट्स है, मतलब अप मूवमेंट वाला स्टॉक्स पे या तो डाउन मूवमेंट वाले स्टॉक्स पे काम करता है. फॉल सिग्नल जनरेट करता है साइडवेज में. सो beware of the indicators on the basis of that the different strategies that you are forming in. So यहाँ पे अगर हम बात करें तो see if the trend is very much bullish, so there are different entry points generated where MACD line crosses the signal line, red line को ऊपर क्रॉस करता है तो वहाँ पे एंट्री जनरेट होती है. And on the same time you can see the histogram is getting greener and greener on when this MACD line is crossing the red line or the signal line. Same way the trend remains intact and you can see the exit point and then have an entry point again upon the histogram is converging to the green from red. तो वहाँ पे जैसे exit point कैसे generate हुआ, MACD line crossing the red signal line on the downside and then the histogram converts into the red zone. तो वहाँ पे एग्जिट जनरेट हुआ आफ्टर एंट्री. अगेन ऑन द सेकेंड एंट्री पॉइंट जहाँ पे हिस्टोग्राम ग्रीन बन गया वहाँ पे एंट्री जनरेट हुई एंड अपॉन क्रॉसिंग ओवर ऑफ द मैकडी देयर इज एन एग्जिट पॉइंट जनरेटेड एंड एट द वेरी पॉइंट इन टाइम द हिस्टोग्राम इज गेटिंग रेड एंड रेड मोर रेड इन कलर. So that's how this MACD line is crossover of MACD signals are getting helpful in the market to generate entry and exit points. So this is all about indicators so far what I सर make you understand. हाँ जी. हेलो, हाँ इसमें एक क्वेरी था मेरा, जहाँ पे आप एक बार बैक स्लाइड पे जाएंगे हम. हाँ इसमें हिस्टोग्राम में अगर नीचे ग्रीन बनता है, मींस हिस्टोग्राम में ऊपर भी ग्रीन रहता है नीचे भी आता है, तो उसका क्या रहता है आइडेंटिफिकेशन? ये क्या बता रहा है, ऑन द डाउन साइड वो रेड दिखाता है, एक क्रॉस ओवर लाइन जीरो के नीचे रेड बनता है, जीरो के ऊपर ग्रीन बनता है. तो मोर ग्रीनर द हिस्टोग्राम the more prevailing that trend is. So for example you can see wherever the more darker green colors you see the price movements are very high, and lighter green colors the price movements are having more I mean in between red candles you can see that. and according जहाँ पे तुम्हें हिस्टोग्राम ज़्यादा ग्रीन टर्न अराउंड होगा वहाँ पे प्राइस मूवमेंट्स विल बी हायर and on the same case with the red lines. So there is nothing ये जीरोधा के केस में है ना सर, जीरोधा में ना नीचे भी ग्रीन दिखाता है. जैसे यहाँ पे डार्क अगर आप रेड देख रहे हो ना, जहाँ पे लाइटर रेडिश है हाँ वहां पे लाइटर ग्रीन बनना स्टार्ट हो जाता है, देन वो टर्न होता है अप साइड में डार्कर ग्रीन के साथ में. I don't know but this is what my studies maybe Zerodha में ओके, I have not used that for charting purpose. वो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है. मतलब जैसे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना कि ऊपर ग्रीन है नीचे रेड है, वहां पे नीचे भी ग्रीन बनता है ऊपर भी ग्रीन बनता हाँ है, ऊपर भी रेड बनता है नीचे भी रेड बनता है.
अरे वो ऐसा है, से फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज टर्निंग आउट टू बी ग्रीन, so the red candles will generate a red histogram color, but actually it is in a green zone. On the contrary, if ओके it is turning out red, but there is say one green candle happen or price movement is in, I mean, मतलब ऊपर क्लोज हुई तो उस जोन में भी जो हिस्टोग्राम का कलर ग्रीन बनेगा. मे बी दैट वुड बी द केस, बट इफ इट इज बिलो द जीरो, इट इज हैविंग डाउनवर्ड मोमेंटम. समझे? ऐसा है. ओके ओके तो तो इस सर हिसाब से. वो सर एक मिनट, हम्म, ये जो एमएससीडी का जो एंट्री आपने मार्क किया हुआ राइट, पहला और एंट्री ये जहाँ है, हाँ, दूसरा एंट्री, दो एंट्रीज है इधर. हाँ तो सेकंड एंट्री और जहाँ पे एग्जिट बनाया हुआ है जी. उस डायरेक्शन को देख रहे हैं और नीचे हिस्टोग्राम देख रहे हैं, राइट सर? हाँ जी. तो इसमें एक पैटर्न दिख रहा है कि ये दोनों अप ट्रेंड में दिख रहा है, राइट? कौन सा अप ट्रेंड? लेकिन ठीक से सिग्नल्स समझाओ. क्रॉस कर एक एंट्री जहाँ पे बनी वहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि जो हाँ, मैकडी सिग्नल और जो रेड लाइन सिग्नल है, या तो दोनों दो, हाँ, सिग्नल दो, लाइन, दो, दो, दोनों हाँ, साथ में सिग्नल मिली लाइन हुई है, बराबर. साथ में मिली हुई है, राइट सर? हाँ, हाँ, और वो. तो हाँ, आगे बोलो. यहाँ पे डिसिसिव नहीं रहेगा ना डिसीजन लेने लायक, क्योंकि ये नहीं पता कि एंट्री होगी कि नहीं होगी। एग्जैक्टली, यू आर राइट. बट ऑन द बेसिस के अभी एक अप ट्रेंड था, यू हैड एन एग्जिट बिकॉज मैकडी क्रॉस्ड red line in the opposite direction. Again, it is turning higher on the above the red zone, and there are green histograms happening. So, depending upon the situation, where you can take an entry, maybe entry point के आगे 4 कैंडल के बाद हिस्टोग्राम ज़्यादा ग्रीनर हुआ, वहाँ पे एंट्री जनरेट हुई. पर एंट्री तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आपका मैकडी का ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल से कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज हो रहा है, बराबर है, डाइवर्ज हो रहा है, तो उस केस में एंट्री तो बनती है. चलो यहाँ पे जहाँ पे एंट्री पॉइंट मार्कआउट किया है वहाँ एंट्री ना बनाते हुए कुछ कैंडल्स बाद, मतलब 6-7 कैंडल बाद एंट्री बनती है ना, जहाँ पे आपका क्लियर कट सिग्नल जनरेट होता है, जहाँ पे हिस्टोग्राम डार्कर ग्रीन कैंडल्स बना रहा है. हम्म। आइदर वे कैन. अब ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे जाता है. That's where these indicators are more or less confusing. Some people will see through different aspects, isn't it? और ये भी है कि मैं बेसिकली एक ही इंडिकेटर लगा के रखता हूँ. मेरे आपने अगर चार्ट्स देखे होंगे तो वो RSI है. I never take decision even upon RSI. What it helps me with whether the momentum is high or low. मैं उसको ये तरीके से नहीं देखता हूँ कि वो ओवर सोल्ड है, ओवर बॉट है. इस सिचुएशन के हिसाब से मैं एंट्री या एग्जिट, ऐसा कोई डिसीजन मैं इंडिकेटर बेसिस पे नहीं लेता हूँ. ये मेरा सबमिशन है. तो इंडिकेटर हेल्प्स यू टू कंफर्म योर एंट्रीज और मे बी कन्विक्शन आपको बिल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं, ओके। है ना. तो ये सब चीज़ें हैं. सो इफ आई नीड टू शो केस यू द डिटेल्स ऑन चार्ट, व्हाट चार्ट विल यू लाइक टू सी? Anyone has any idea or point of view so that I can make out the तो details? इसमें जो हिस्टोग्राम ज्यादा ग्रीनर है वो एरिया एंट्री के लिए बेस्ट जोन रहेगा अगर देखा जाए तो। जी जी, बात सही है. So let's make out the chart of what I suggested in last session. Anybody remember दो flags बताए थे मैंने, कौन से flags थे वो? एक इंडस टावर का बताया था आपने, मतलब ट्रेड वेड लिया कि नहीं दूसरा पता नहीं. Let's study that chart again. Still it is showing the entry, okay? And in front of you, if I need to showcase that, let me show you Indus Towers. Okay, and let me show you the Indus Towers chart. Okay. फॉर ओके, पर्पसफुल सिनेरियो, ये सब चीज़ें हैं क्या करने के लिए काम में आती है, व्हाट इट शोज, वो भी मैं बाद में बता दूंगा. फाइन. नाउ सी द चार्ट आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. लेट मी टेल, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, प्लीज़ कंफर्म दैट.
चार्ट वाला स्क्रीन दिख रहा है, सॉरी. कैन यू सी द चार्ट स्क्रीन guys? Yes, yes, Do you see the charts? yes, yes. Chart is visible. ओके फाइन. सो अब यहाँ पे से सब चित्र उड़ा देते हैं और ये इंडिकेटर्स कुछ नहीं होता है, ठीक है. अब यहाँ सब नेकेड चार्ट है. what do you what do you take as a decision upon what it is showing on the chart? क्या दिखता है? Can anyone see or tell something happening in the chart? जो हमने प्राइस मूवमेंट्स की बात की थी लास्ट कपल ऑफ, ये चौथा वीक है शायद से, तीसरा और चौथा वीक है. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स गेटिंग जनरेटेड. बुलिश एंगल, फिर यहाँ पे हैमर दिख रहा है. हैमर के बाद आपको एक मैंने पैटर्न बताई थी कि भाई तीन कैंडल्स का अगर हैमर बन रहा है, इसमें पहली कैंडल रेड है, दूसरा हैमर है, तीसरी गैप अप ओपनिंग है. मॉर्निंग So morning star स्टार. kind of scenario is generated. You can decide upon whether you can take entry wherever it is. So this is a naked chart, okay? And upon the naked chart, what you can see certain details I made use. I mean last week में हमने फ्लैग पैटर्न्स के बारे में बात की थी. सो अगर मैं सामने आपको ये दिखा दूँ, ये जो फ्लैग पैटर्न हमने लास्ट वीक में बनाया था, वेयर यू कैन सी द कांस्टेंट अप मूव, और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद देयर इज़ वन बिग ग्रीन कैंडल मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ आवर फ्लैग पैटर्न दैट इज गेटिंग जनरेटेड. तो उसके बेसिस पे हमने एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट पॉइंट्स जनरेट किए हुए हैं. नाउ हाउ द इंडिकेटर्स आर हेल्पिंग. if I put that moving average indicators, so I am using here say MA रिबॉन, जहाँ पे मल्टीपल मूविंग एवरेज एक ही इंडिकेटर में दिखता है. आपको पता होगा कि इन्वेस्टिंग ये जो है ना प्लेटफॉर्म पे, ट्रेडिंग व्यू पे, देयर आर मैक्सिमम 3 इंडिकेटर्स दैट यू कैन यूटिलाइज. दैट्स वेयर आई एम मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ अवेलेबल फ्री प्लेटफॉर्म्स. तो क्या सर, कौन सा है इंडिकेटर है? MA रिबॉन्ड करके है. यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में जाओ, यहाँ सर्च करो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स में आपको दिख जाएगा. यहाँ पे डालो MA रिबॉन्ड, MA रिबॉन्ड. तो दिस इज़ अ मल्टी क्या बोलते हैं, मल्टी EMA इंडिकेटर. if I need to see the settings, यहाँ पे setting button पे click करके you can see what kind of closing prices it is depicting. You see moving average 1, moving average 2, moving average 3, moving average 4. Here kind of moving average is as an input we have used as EMA. You can use it as a simple moving average, then weighted moving average, exponential moving average. Fine. So these are the closing periods that I am using at present. So you can see that darkest line I am using as a simple moving average of 200. So it is showing on the basis of all these details what is looking there in the chart. अगर ये सब चीज़ें लगाई है तो यहाँ पे डिफरेंट कलर से इंडिकेटिव है. तो जो फास्टेस्ट मूविंग एवरेज 5 वाली क्लोजिंग लाइन है, उसके ऊपर मेजेंटा लाइन है, उसके ऊपर रेड लाइन है, और उसके ऊपर 200 मूविंग एवरेज की मैरून या तो ब्राउन लाइन है. ओके, दिस आर द मूविंग एवरेजेस एंड स्टाइल्स. इट इज़ डिपेक्ट, यहाँ पे सब डिटेलिंग दी हुई है. यू कैन मार्क आउट दिस इंडिकेटर ऑन, कोई ट्रेडिंग भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है तो, या तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप ये सेटिंग्स लगा सकते हो. यू कैन ऐड मल्टीपल EMAs ऑन द, on not only chart but on that histogram, MACD and something else as well. So here what it is showing, you just ignore the noise here, जहाँ पे मैंने ये जो up flag बना है. What you can see right now in current situation where there is no crossover happening. Actually crossover यहाँ पे कहाँ पे बना था, एक यहाँ पे crossover बना था, यहाँ पे संगम सिग्नल जनरेट हुआ था, बट दैट हैज़ डिफरेंट कंडीशंस टू मैच विथ. यहाँ पे उस टाइम पे वॉल्यूम नहीं था. whenever there is a crossover happens, there is also retesting happen always. It is the nature of the market. When the breakout happens, it retests the zone, and where you can see the price actions there, and then you can decide upon.
तो अगर मूविंग एवरेज के बेस पे अगर किसी को एंट्री लेनी होगी तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेदर द मोमेंटम हैज़ बीन बिल्ट अप और नॉट. So there are certain things which I made you understand in last couple of scenarios जहाँ पे अलग अलग patterns generate होते हैं. What kind of patterns we learned, like head and shoulder, this flag, and wedge breakout. You can see very well there is a wedge breakout pattern generated over here, and then there is a continuous uptrend and there is a consolidation happening. तो continuation pattern में एक signal मैंने last week में बोला था, there is a flag generated over here and it is meeting different criteria, so we defined those criteria upon which we have generated this flag. So what confirmation that moving average is giving कि भाई तुम सही में proper direction में entry ले रहे हो, exit ले रहे हो, क्या है. So this is what it is showing as a part of moving averages so far. आपको मूविंग एवरेज के बारे में कोई डाउट है एंट्री एग्जिट के करस्पॉन्डिंग? अभी मैंने कहीं पे भी कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं की है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट मूविंग एवरेज इज शोइंग. यहाँ पे आप रेड लाइन देखोगे ना तो ये करंट रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेकआउट कर रहा है. दैट्स वेयर दिस सिग्नल हैज़ बीन जनरेटेड. ये जब ग्रीन कैंडल बनी थी अपॉन विच आई जनरेटेड द फ्लैग इन लास्ट वीक, इट वाज एन इंडिकेटर कि जहाँ पे ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर जा रहा है. सो देयर इज़ अ अभी भी एंट्री इसमें अवेलेबल है. अगर अभी एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस आपके हिसाब से बनेगा इस जोन के हिसाब से. ठीक है, इसमें अभी भी रिस्क रिवॉर्ड बचा है. कितना रिस्क रिवॉर्ड बचा है आप देख सकते हो. 2.82 का मतलब 1 जैम 2.8 का रिस्क रिवॉर्ड है. तो इतना स्टॉप लॉस है, उसका एंट्री और एग्जिट ऑलरेडी डिफाइंड है. सो दिस इज़ इंडिकेटर ऑफ मतलब EMA इसके साथ कैसे मर्ज होता है. अब मान लो ये फ्लैग जनरेट हुआ, यहाँ ओपनिंग हुई, बट ये कभी टारगेट को हिट नहीं किया. ये पहले भी ऐसा फ्लैग जनरेट किया था बट उसने काम नहीं किया. तो ये इंडिकेट करता है कि भाई चीज़ें जैसे हम देखते हैं वैसे नहीं होती है. और ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज, इफ समवन वुड हैव टेकन एंट्री ओवर हियर, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे एंट्री होता वापस एग्जिट हो जाता, एंट्री होता वापस एग्जिट हो जाता, एंड सेम इज़ द केस. मान लो यहाँ पे एंट्री तो मिली, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज कहाँ पे क्रॉस डाउन हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे हो रहा है क्रॉस डाउन. तो समवन वुड हैव टेकन एग्जिट अपॉन दिस जोन. तो एंट्री बड़ी लेट मिली, इस जोन में एंट्री मिली, उसी जोन में एग्जिट मिल गया. तो ये भी कहानी है. सो अल्टीमेटली दिस इज ओनली शोइंग एक्चुअली द डायरेक्शंस और द मूव दैट इज हैपनिंग इन योर फेवर और समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन योर डायरेक्शन. वो बस यही इंडिकेट करता है. दूसरा इंडिकेटर है RSI का. तो नीचे ये RSI का इंडिकेटर है. ठीक है, अभी हमने ये बताया, मैंने RSI में यहाँ पे 14 डेज़ का क्लोजिंग है. ये जो आपको 60 और 40 का लेवल दिख रहा है, मैं RSI 60-40 लेवल यूज़ कर रहा हूँ. डिफ़ॉल्ट सिग्नल में वो 70 और 30 का रहता है. इसके सेटिंग्स में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा लेंथ 14, सोर्स क्लोजिंग बेसिस है, सिंपल मूविंग एवरेज है. इसका लाइन जो दिख रहा है वो जो यहाँ पे आपको कलर के उसमें स्टाइल में आप देखोगे ना, दो लाइन्स है. RSI बेस्ड मूविंग एवरेज. तो ये जो लाइट येलो कलर है वो मूविंग एवरेज है, और दूसरा जो डार्क ब्लू कलर है वो RSI का कलर है. तो जो मूविंग एवरेज का क्लोजिंग पीरियड क्या है, RSI का लेंथ 14 का है, और जो मूविंग एवरेज है टाइप सिंपल मूविंग एवरेज उसका लेंथ 14 का है. तो 14 के बेस की RSI और मूविंग एवरेज की डिटेलिंग है. तो 2 हफ्ते का मूवमेंट इधर उधर का दिखाता है. एंड एज यू कैन सी ईयर 60-40 का जो वैल्यू है, यहाँ पे आपको विजिबिलिटी यहाँ पे 60-40 की जगह पे नॉर्मल 70 और 30 दिखेगा. 70-50 और 30. ये 50 वाला लाइन थोड़ा डार्क कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट. ये रहा 50 का लाइन. ओके, तो दिस इज़ व्हाट द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ बीइंग सीन. अब RSI बेस पे हम बात करते हैं. आपको यहाँ ऊपर चार्ट दिख रहा है, नीचे नॉर्मल कंडीशंस ऑफ RSI दिख रही है. अब कोई बोलेगा यहाँ पे ओवरसोल्ड कंडीशन है ना, क्योंकि RSI लेस देन 30 है. ये ओवरसोल्ड कंडीशन में भी आपका स्टॉक और भी नीचे जा सकता है. बट एक शॉर्ट सिग्नल है, यहाँ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का एक सिग्नल जनरेट होता है किसी भी स्टॉक में. जब RSI अलग डायरेक्शन में, जैसे
ये 2 पॉइंट के बीच में RSI का मूवमेंट जो है वो यहाँ लो है, यहाँ हाई है। उसी जोन में आप ऊपर स्टॉक की मूवमेंट देखोगे तो ऐसा है, तो इसको RSI कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बोलते हैं, RSI डाइवर्जेंस बोलते हैं। इस केस में आपको काफ़ी सारे और भी सिग्नल्स दिखेंगे। यहाँ देखोगे तो ये हैमर जनरेट हुआ और यहाँ पे RSI 30 के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग अराउंड to take an entry or exit or kind of signals. So there are so many methods available in the market that can confuse you about आपको कौन सा यूज़ करना है और कैसे उसमें ट्रेड करना है, ठीक है। So depending upon your trading style, you can use these indicators for your benefits. You see over here, जहाँ पे RSI लेटली 30 से ऊपर चला गया, यहाँ पे 1 2 3 बार के बाद यहाँ पे 1 2 3 मूवमेंट के बाद यहाँ पे ऊपर गया, बट अगेन इट वॉज देयर इन द रेंज। बट व्हेन इट इज़ ब्रेकिंग आउट द रेंज, यहाँ पे RSI 70 के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज 200 का, जो सिंपल मूविंग एवरेज 200 है, उसके ऊपर वैल्यूएशन चली गई। अगेन ये सो कॉल्ड ओवरबॉट सिचुएशन में था, फिर भी कुछ टाइम तक उसने अपवर मूवमेंट दिया और वो 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर भी रहा, पर फिर RSI का डाइवर्जेंस या तो वैल्यूएशन देखो वो 50 के आसपास होवर कर रही थी। उसके बाद वापस वो RSI 70 को टच करके वैल्यूएशन ऊपर जाके नीचे जनरेट हुई। तो यहाँ पे जब प्राइस की मूवमेंट हाई टू टॉप बॉटम तक जाओगे या तो स्पेसिफिक बॉटम तक जाओगे, तो यहाँ पे RSI का मूवमेंट 70 से 30 के बीच में या 30 के नीचे भी है। यहाँ पे वैल्यू बहुत कम है RSI की। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको क्लोजिंग बेस की RSI वैल्यू भी दिखेगी। यहाँ पे RSI की वैल्यू 20 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 22.88 है, यहाँ पे 35 है। तो इस जोन के हिसाब से यहाँ लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे RSI जहाँ लिखा है 14 क्लोज पे, यहाँ पे यू कैन सी द वैल्यू इज़ देयर। तो यहाँ पे जैसे RSI का वैल्यू मिनिमम 19 तक चला गया। अब उस जोन में 19 तक की वैल्यू के हिसाब से तो प्राइस उसके बाद तो नीचे नहीं जानी चाहिए। ओवर सोल्ड सिचुएशन में कोई देखेगा कि भाई 19 का वैल्यूएशन है तो कोई यहाँ परचेज करेगा। अगर परचेज करेगा तो भी ऊपर तक जाने के चांसेस है, अगर तो भी कितने हैं, मिनिस्क्यूल है, ज़्यादा है, वो बेसिस ऑफ RSI वो पता नहीं चलता है। सो RSI is just an indicator showing what kind of situation there in the market. Again, all indicators are always lagging indicators. अब बात करते हैं किसकी? इसमें सर एक चीज पूछना था, हाँ। जैसे आप उसमें बोल रहे थे कि प्राइस एक बार जाता है तो रीटेस्ट करता है, इसमें भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि RSI अगर नीचे आ रहा है देन पुल बैक हो रहा है, पुल बैक के बाद नीचे एक बार बॉटम को रीटेस्ट करके जा रहा है। This one? ये ऊपर जो प्राइस आपने बोला ना, जैसे कि हाँ जैसे प्राइस ये प्राइस की 20 बात कर पे रहा है और 20, यहाँ से हाँ ये यहाँ से ऊपर गया था रेड लाइन तक, तो रेड लाइन से नीचे आया हम्म, जहाँ पे डाइवर्जेंस बना है, बॉटम बना, तो काइंड ऑफ ये पुल बैक है। जैसे हम अप साइड में देखते हैं रीटेस्ट हो रहा है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि पुल बैक हुआ, ये क्या है? होता है। यस यस, इट इज़ दैट वे। अब दूसरा बताऊं आपको, डबल टॉप डबल बॉटम सिचुएशन, इसी के ऊपर अगर इस टॉपिक के ऊपर ही बात करते हैं तो RSI डाइवर्जेंस इज हॉट टॉपिक फॉर मी। इवन आई ऑल्सो सी थ्रू फॉर सर्टेन सिचुएशंस टू मेक अ शॉर्ट। जब कभी कोई सोच भी नहीं होगा तब मैंने कुछ एंट्री पॉइंट्स लास्ट वीक के जो 2-3 चार्ट जिसके बेस पे मैंने अभी बताया ना आपको, आपने ग्रुप में देखा होगा कि जहाँ कोई एंट्री ही नहीं बन रही है और आपको मैंने बोला कि यहाँ पे बाय करो और इसमें राइड करो, है ना। 2 स्टॉक्स ऐसे थे, एंजन और एक स्टॉक है और दूसरा आई जस्ट डोंट रिमेंबर, दूसरा भी एक है। तो जो स्टॉक्स में परसिस्टेंस दिया था आपने। आई गेस परसिस्टेंस और डिक्सन में भी बोला था, डिक्सन में लेट एंट्री मिली फिर। सो दिस आर द डिफरेंट मार्केट सिनारियोज जहाँ पे आपके स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके आप ये अर्न आउट कर सकते हो। देखो RSI डाइवर्जेंस में आपके सिग्नल के बीच में ज़्यादा कैंडल्स होना काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अब डाइवर्जेंस क्या होता है, कोई एक सिग्नल एक्स डायरेक्शन में है तो दूसरा सिग्नल वाई डायरेक्शन में, दिस इज़ अ डाइवर्जेंस, ठीक है। अब कोई भी चार्ट के 2 पीक पकड़ लो, मान लो यहाँ से दिस वन इज वन पीक एंड दिस इज द अनदर पीक, ये लाइन को ब्रेक डिलीट मार देते हैं और उसी डायरेक्शन में उसी पॉइंट में आप RSI का मूवमेंट चेक करो। ये फर्स्ट पीक का पॉइंट
and see the second peak. Is there a divergence available? ये एक ऊपर जा नो रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो हाँ, ये सेल साइड का डाइवर्जेंस बोलेंगे इसको. स्टॉक ऊपर जा रहा है पर ओके आरएसआई ऊपर से नीचे आ रही है, ओके ये बाय साइड का डाइवर्जेंस है. ओके नाउ सी दूसरा कंफ्यूजिंग सिग्नल. यहाँ पे स्टॉक के मूवमेंट्स चेक करो, यहाँ पे ऊपर जा रहा है और आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, बराबर है ना. सो देयर इज नो डाइवर्जेंस अवेलेबल करंट, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई भी ऊपर जा रहा है. इज इट राइट वे? समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? तो RSI is not an indicative thing, but it is a confirmatory thing to make out whether you should take a sell entry or should take a buy entry, whatsoever reason. Combining it with different other strategies. ठीक है ना. सो अब कोई बोलेगा कि ये तो बहुत इजी है ढूंढना किसी भी स्टॉक में. तुम नाम ले लो किसी भी स्टॉक में, ये सिनारियो आपको बार बार देखने को मिलेगा. मैं अगर बात करूं कोई भी, अभी जैसे परसिस्टेंट की बात करते हैं. अब किसी ने परसिस्टेंट बोला ना, सी अब ये सब चित्र ओपन करने पड़ेंगे मुझे. सो सी एट लेवल एट आई मार्क, व्हाट यू सी, यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको. बड़े बड़े पीक के आसपास आप अगर देखोगे तो डाइवर्जेंस क्या दिखाता है. चलो ये सब डिलीट मार देते हैं. या तो तो डाइवर्जेंस तो ये टॉप एंड बॉटम पे ही बनेगा RSI में या मिडल में भी बन सकता है? कौन से मीडियम में, या ऐसे यहाँ इस जोन में? हाँ 30 to 50, जैसे अगर RSI मेरा नहीं, 30 था टॉप देन बॉटम ही 50 तक दिख गिरा रहे हैं. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ डाइवर्जेंस देन फॉर द रेंज इन बिटवीन 30 to 70. इट इज़ कॉल्ड एज ओवरसोल्ड ओवरबॉट डाइवर्जेंस ओनली. अब जैसे लेटेस्ट मैंने क्या दिया था, एंजल वन का चार्ट आप देखो. यहाँ पे करंट स्टेट में यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, आपको दिखेगा. रिसेंट पास में कोई भी चार्ट आप ले लोगे ना, जहाँ पे ओवर्स और ओवरबॉट सिचुएशन में आपको डाइवर्जेंस दिखेगा ही दिखेगा. ये वैल्यू लो है, ये कम लो है, तो देखने का नज़रिया समझ में आना चाहिए. ठीक है. अब कोई ये बोलेगा जैसे तुमने अभी बताया, यहाँ पे डाउन मूवमेंट्स चल रही है, पीक को, दो पीक को जोड़ेंगे है ना, तो इसी पीक के बीच में डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस है क्या. यहाँ पे ये हाई पॉइंट दूसरा लिया हमने और ये दूसरा हाई. इज देयर एनी डाइवर्जेंस अवेलेबल? नो. अदर वे आउट, उल्टा डायरेक्शन में चेक करो. यहाँ पे हाई प्राइस मूवमेंट्स है दो पीक के बीच में, एंड यू सी हियर डाइवर्जेंस हैपनिंग यहाँ पे और इस जगह पे. समझ में आ रहा है? ये ऊपर जा रहा है बट ये फ्लैट या तो नीचे की डायरेक्शन में है. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू कितना है, 79.41, अराउंड 79.41, और ये उससे नीचे है 77.48. तो दिस इज़ अ डाइवर्जेंस. इसको जूम करके या तो उस डायरेक्शन यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको क्लियर दिखेगा ऐसा. दिस इज़ हाउ डाइवर्जेंस वर्क्स. इतना सारा चार्ट पे बना के रखा है, आपको शायद समझ नहीं आए. समझ में आया? ये ऐसे काम करता है, हाँ ये यहाँ पे काम नहीं करता है. एक चीज बताओ, हाँ. डाइवर्जेंस का जैसे ये लाइन है, हम्म. अभी इसमें कहीं कहीं ये दिखने को मिलता है कि डाइवर्जेंस का लाइन लंबा होता है और कहीं पे शॉर्ट डाइवर्जेंस का लाइन होता है. डज इट सिग्निफाई एनीथिंग? Correct. The shorter the divergence line, the more confirmatory it is to to confirm the trend. अब ये उल्टा हैमर आया यहाँ पे. अब what is the signal generated over here? Somebody has to trade this signal. यहाँ पे हैमर बना है, तो उस टाइम पे RSI क्या दिखा रहा है, तो ये और इसके बीच में नंबर ऑफ कैंडल्स कम है, तो इट इज़ अ वैलिड सिग्नल टू फॉलो, ऐसा भी है. बट कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत सारे अगर मतलब कैंडल्स आ चुके तो उसके बीच में डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस हो रहा है, तो इसका सिग्निफिकेंस कंपैरेटिवली कम होता है.
समझ में आया? ओके ऐसा। ओके। तो मान लो ये जो दो टॉप है, मान लो ये जो तो टॉप है, उसके बीच में अगर डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस की यहाँ तो बन ही नहीं रहा है, बट ये दो टॉप है ना, ये दो टॉप, हम्म ये दो टॉप के बीच में कन्वर्जेंस बन रहा है। अगर ये मैं निकाल देता हूँ, मैं एंजल वन का, मेरा तो अभी ट्रेड चल रहा है, तो चलो इसको साइड पे कर देंगे। अरे हट जा भाई। हाँ, तो ये जो टॉप है, ये जो टॉप के बीच में कन्वर्जेंस होगा आपका, डाइवर्जेंस है कैसे? ये हाई टॉप है, ये लो टॉप है, उसी टाइम पे हम्म आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट कंडीशन है ऑन द चार्ट। यहाँ पे हाई और लो टॉप के बीच में ऑलमोस्ट फ्लैट कंडीशन है। So this is a valid divergence to follow, और अदर वे आउट। इसी इस टॉप को कभी उसने वेट दिया ही नहीं, ये मोर और लेस डबल टॉप बन गया, बट उस डबल टॉप के बीच में यहाँ पे कितना सारा डाइवर्जेंस हो गया, मतलब वो आरएसआई कितना नीचे आ गया, इजंट इट? तो हम्म अगर इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है तो जितने कम कैंडल्स रहेंगे फॉर डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, इट इज़ बेटर। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। बट ये सिग्नल जो कोई जैसे सिग्नल यूज़ कर रहा है वैसे उसको बता सकता है इधर वे, एंड ये सब आपको एडवांस में समझने के लिए काम में आएगा, नॉट फॉर दिस सेशन द वे आई एम ट्रेडिंग राइट नाउ। So at very point in time, you cannot see any signal whatsoever it is generating on the chart, and the basis of oversold condition of say RSI or somewhere around, तुम्हारा मूविंग एवरेज भी यहाँ पे लगाओगे तो शायद काम नहीं करेगा। विल सी हियर ऑन करंट स्टेट ऑफ एंजल वन, नीचे तो RSI का कोई हेल्प नहीं है, यू सी द मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस, ये तो नेगेटिव बायस में ओवरऑल नेगेटिव ही है, तो मैंने यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट किया है, एंड इट इज़ गेटिंग फॉलोड अप, हैविंग गुड फॉलो अप फॉर रिस्पेक्टिव डेट, और टारगेट 2 तो ऑलरेडी हिट हो चुका है, आई एम वेटिंग फॉर द टारगेट 3, सो ओनली दैट पार्ट आई एम ट्रेडिंग राइट नाउ। सो ये सब चीज़ें एडवांस उसमें चली जाती है। ओके, सो अभी हम बात करें डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस की। ओके, नाउ anything more to be learned for the part of these two signals, simple moving average, exponential moving averages and RSI? अभी तक समझ में आ गया? कोई डाउट है? अच्छा ये बताओ, ये मूविंग एवरेजेस जो है ना, जो अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं, जी विच इज अ बेटर स्ट्रेटेजिकल एवरेज मूविंग एवरेज टू बी फॉलोड? लाइक जैसे अपने पास 50 भी है, 20 भी है, 19 भी होता है, तो कौन सा बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ अ शॉर्ट ट्रेड एंड अ लॉन्ग ट्रेड? ओके, to make you more understanding or more insight into the moving average scenario, क्योंकि मेरे इनिशियल शुरुआत इसी से हुई है, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग टेक्निकल्स इट वाज बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेजेस ओनली। यू मार्क आउट द डिटेल्स ऑन द चार्ट वेयर 200 का ये जो मूविंग एवरेज है ना, यू सी, मैंने कहीं किसी को पहले बताया ना, थोड़ा क्लीनर चार्ट देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी वे जहाँ पे ज़्यादा ऐसा डिटेलिंग नहीं है। ओके, जब कभी ये 200 का मूविंग एवरेज जितना ऊपर जाता है, इफ़ आई नीड टू शो केस यू दिस वे, ये हाई लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट इतना मूवमेंट है, सी दैट, मान लेते हैं, या पीक है। अगर तुम मान लो इसको थोड़ा सा आगे पीछे भी घुमाओगे तो मोर और लेस इट विल फॉलो द मूविंग एवरेज अलॉन्ग विथ, है ना। तो आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट गैप बिटवीन 200 एंड व्हाट यू सी द प्राइस रेंज। So as the movement, if it is getting crossed down on the downside, at least on the same front, अगर यहाँ पे इसको हाईएस्ट गैप बोलेंगे, ये पकड़ नहीं रहा है एक्चुअली, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट हाईएस्ट है, और यहाँ से ये पॉइंट तुम्हारा लोएस्ट है ना। तो more or less this is what it follows in any stock's lifespan. There are exceptions always, but
ऐसा है, अगर 200 की मूविंग एवरेज जो है ना, जैसे अपने में रहता है ना फादर फॉर फादर या ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, तो ये ग्रेट ग्रैंड फादर है जिसको मतलब हम अपना मूल छोड़ के कहीं दूर नहीं जाते हैं। तो इन केस ऑफ टेक्निकल्स ये मूविंग एवरेज जो है सबको बांध के रखती है। दैट मीन्स if it is getting crossed out in some point in time and stock is moving in a respective direction, there is a span in any stock which will always going to touch that back onto that line and again go. Even though it is running far away, it is always going to be the case वो 200 को टच करने आएगा ही आएगा, इन कोई भी स्टॉक होगा। ये थंब रूल है। तो 200 मूविंग एवरेज क्या करती है, लॉन्ग टर्म का ट्रेंड दिखाती है। समझ में आया? फार्दर द स्टॉक फ्रॉम दिस 200 मूविंग एवरेज, likely are the chances that it will come down depending upon different market conditions to meet that line. Until it is meeting that line, या तो वो वहाँ पर ही कंसोलिडेट होता रहेगा जब तक ये 200 का मूविंग एवरेज ऊपर की डायरेक्शन में नहीं जाएगा तब तक। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा है। तो 200 की मूविंग ओके। एवरेज लाइन जो है वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। बाकी की जो हमने बताई ये सिंपल मूविंग एवरेज है। अभी इसमें कोई 50 का भी प्लॉट करता है, ठीक है, 200 की जगह 50 मूविंग एवरेज क्रॉस लाइन भी यूज़ करता है। समबडी इज ऑल्सो यूजिंग से 250 डेज का मूविंग एवरेज। आई एम मार्किंग आउट फॉर माई पर्पज इज दिस 200 मूविंग एवरेज, है ना। मेरा मेरा कहना है कि 200 है मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है। इसके नीचे अगर गया तो समझो वो और नीचे जाएगा, और इसके ऊपर कोई स्टॉक गया मतलब समझो उसने अपना काम शुरू कर दिया इन द अप डायरेक्शन, बट देर सवेर में आपको कहीं ना कहीं वो सिग्नल देगा। तो दैट इज़ हाउ द 200 मूविंग एवरेज लाइन वर्क। बाकी सब आपके एंट्री एग्जिट के लिए यूज़ होते हैं। कौन से 5 के, 13 के, 26 के, बाकी के जो मूविंग एवरेज है वो। तो ये these are the short term entry exit points or the lines. So whatever stock you are looking for have high conviction about if they are working above 200 or not. It has to be seen that way कि अगर वो अगर किसी को सच में ट्रेंड पता करना है करंट स्टेट में, अभी करंट स्टेट में आप कोई देखोगे तो इसका ट्रेंड क्या समझ में आएगा? ये कोई बोलेगा कि ये तो साइडवेज में चल रहा है, इजंट इट? ये साइडवेज में चल रहा है या फिर अप डायरेक्शन में? व्हाट यू सी इन करंट स्टेट, इट इज़ इन अप डायरेक्शन और साइडवेज, सो एज द मूविंग एवरेज लाइन देयर। तो वॉट एवर कंडीशन इट इज़, इस केस में कोई बोलेगा ये तो साइडवेज में चल रहा है, but it is actually not in the sideways, it is in consolidation zone and getting ready for the next move, because it is already crossed the 200 line and it is going to meet down there and then going to on the up direction. This is how the stock swings. इसको ही swing trading बोलते हैं। अगर इसको zoom out करोगे, this is how you see the swing, this is the swing, and zoom in करोगे तो ये ऐसा दिखता है। दिस आर डिफरेंट zigzags, दिस आर द noises actually, and so the moving averages helps you to understand whether the trend is correct, whether the momentum is in right direction or something so called. Okay, so these are different things that I can convey you about the moving averages. RSI के बारे में मैंने बताया, RSI कैसे डाइवर्ज कन्वर्ज होता है। MACD के बारे में जानना है, so I need to remove this RSI and put MACD, or I'll remove volume indicator and I just hide the indicator MACD. MACD convergence and divergence, क्या हो गया भाई? सर स्टॉक की साइकिल्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पास डेटा के बेसिस पे कि लास्ट इतने टाइम तक कंसोलिडेट किया, नेक्स्ट कब ट्रेंड चेंज हो सकता है? ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है क्या? क्योंकि कुछ स्टॉक्स 5 साल तक कंसोलिडेट कर रहे हैं, कुछ और भी लंबे टाइम से, कुछ 1 साल के कंसोलिडेशन में होते हैं, नहीं, वो उसमें फंडामेंटल वो कैसे सब चीज, आइडेंटिफाइड होता है? जो स्टॉक्स का मोमेंटम चेंज होना, हम स्पेसिफिक इस स्टॉक की बात करते हैं जो सबके जहन में होगा ही। लेट मी ओपन अप दैट, व्हाट डू यू सी नाउ? दिस इज वीकली चार्ट। हम्म, अब मैं और इंडिकेटर्स लगाता हूँ, RSI लगाया, बताओ क्या दिख रहा है
RSI से क्या समझ में, ये वीकली चार्ट है ओके, क्या समझ रहा है? कुछ आइडिया, कुछ समथिंग आशीष, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म थोड़ा चार्ट में ब्लर क्या दिख रहा दिख है रहा है? यहाँ पे, हाँ? डाउन ट्रेंड है लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंड कंसोलिडेशन हो रहा है लास्ट में आपका एक सपोर्ट के पास में। सर ये 200 EMA को ब्रेक किया इसने। करेक्ट, ब्रेक एक किया पॉइंट था, ये है। ब्रेक डाउन हुआ, देन बाद में थी। करेक्ट, हाँ। सी वेर एवर इट इज ब्रेकिंग 200 exponential ये line, जो simple moving average, you have every right or chance to get an entry. यहाँ पे ब्रेक आउट किया है, सो हाँ इफ यू इसमें सी on the daily chart, what do you see? There is a constant trend happening, current trends में। अब ऐसे देखते हैं चार्ट को, हमको वीकली पे जाना है, पहले क्या दिख रहा है, सिंपल सा है। चलो ये सब छोड़ दो, RSI FRSI क्या दिख रहा है कंसोलिडेशन में, वीकली क्या दिख रहा है कंसोलिडेशन में, डेली क्या दिख रहा है, डेली देयर इज सम मोमेंटम इन अ करंट ट्रेंड है ना, ये करंट में थोड़ा सा मोमेंटम में है। अच्छा मोमेंटम में है तो मैक्सिमम जोन्स कहाँ पे है, तो दिस आर द मैक्स जोन है, एक काले कलर की लाइन दिख रही है 1680 की, वो प्रीवियस हाई जोन है। दिस आर द डिफरेंट जोन्स, हाई जोन्स ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ reaching these zones are likely because it is in that direction, ये स्टॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए व्हाट इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, द नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी द प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन और प्रीवियस पिक्स, इजंट इट? तो ये जो 1680 है वो एक कहीं का प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन था, वो मार्कआउट करके रखा, कोई इसको भी ये जोन के तौर पे मार्कआउट कर सकता है, 16-17 का एक जोन बनता है। समझ में आया? तो दिस इज हाउ यू कैन सी। वो ये नहीं बोल सकते कि भाई ये यहाँ से कभी ऊपर नीचे आएगा ही नहीं, दैट देन यू हैव टू स्टडी द फंडामेंटल्स। अब ये अपनी चाल बदल रहा है, दैट व्हाट यू कैन इंडिकेट फ्रॉम द चार्ट्स, बट टू कंफर्म दैट पार्ट देर आर समथिंग विच इज ड्रास्टिकली चेंजिंग, यू हैव टू सी थ्रू द फंडामेंटल्स। और ये फंडामेंटल्स आपको इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो एनी चार्ट से कोई सा भी चार्ट, चलो डिक्सन की बात करते हैं, डिक्सन तो डाउन, अब बताओ ये इसमें 200 एमए से नीचे चला गया है ना, अब 200 एमए से नीचे चला गया, कहाँ तक जाएगा? तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि इधर नीचे गया, ओवर सोल में चला गया, ओवर बॉट में चला गया। दिस इज हाउ आई ट्रेडेड डिक्सन। इसके पहले मैंने शॉर्ट मारा था परसिस्टेंट शॉर्ट मारा था, डिक्शन भी शॉर्ट मारा था, शॉर्ट से निकल गया इस जोन में। then I also marked out one zone, entry zone here, but it didn't work out, so again नया entry zone बना, उस पर मैंने एंट्री लिया। so मेरे लिए काम करता है, मतलब ठीक है, एक दो बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट जब टारगेट्स आएंगे, टारगेट्स बहुत बड़े आते हैं, सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग आउट। सो एनीवेज अभी क्या है, 200 के नीचे है। अब चलो सब इंडिकेटर निकाल देंगे, ऑन नेकेड आई व्हाट कैन सी एज दिस चार्ट, क्या दिखता है? वीकली में करेंगे, सॉरी, व्हाट इज इट? प्रीवियस सपोर्ट के पास में है। मान लिया सपोर्ट पे, पर ये करंट स्टेट में कौन सी जोन में है? अप है, डाउन है, एक साइडवेज? साइडवेज कंसोलिडेशन है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। तो ये एक रेक्टेंगल बॉक्स बन रहा है जिसके बीच में ये घूम रहा है, बराबर है अभी के लिए, करेक्ट, मान लिया ये करेक्ट। इसका एंट्री एग्जिट जोन बनता है। अब डेली में चलते हैं, डेली में क्या दिखता है करंट स्टेट में? इट इज़ एज सिंपल एज दैट। फिर हम इंडिकेटर लगाएंगे। इसको दिल्ली में छोड़ दो, सप्लाई आ रही है, सॉरी डिमांड आ रही है नीचे से। इसको छोड़ दो, बराबर इसको इग्नोर करना। यू जस्ट सी इट इज कमिंग डाउन टू सम सपोर्ट जोन एंड बाउंसिंग फ्रॉम दैट जोन। अभी यही दिख रहा है, बस यही काम में आता है। अल्टीमेटली तुम ये बना लो, वो बना लो, फलाना ढिमकाना, वो अपने तरीके से। अब लगाओ तुम इंडिकेटर्स कि भाई EMA लगा दिया, बताओ EMA तो तुम्हें तो ये तो सेलिंग जोन में दिख रहा है। Is there any chance, by any chance you can see entry signal? No. इस अगर EMA या इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई एंट्री सिग्नल बन रहा है? नहीं बन नहीं। रहा है। RSI के हिसाब से देखेंगे, क्या कोई एंट्री सिग्नल है इसमें RSI के हिसाब से? नहीं है, डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन ओवरसोल्ड में गया था सही। राइट। सो यहाँ पर भी तो ओवरसोल्ड में था,
इस जोन में, यहाँ पर जस्ट था, ए पुल बैक है, यहाँ था, वी कैन यहाँ से था। दैट कि पुल बैक है जहाँ पर ये ईएमए को एक बार टेस्ट करके जा सकता है। यहाँ पे टेस्ट करके नीचे जाएगा, और करेक्ट, ऐसा कोई समझ सकता है जिसको जो करेक्ट। समझना है उसके हिसाब से बराबर। यहाँ पे 26 का ईएमए है, अगर उसको क्रॉस ओवर नहीं करता है तो वो नीचे और जाएगा, राइट। दैट कुड बी वन ऑफ द करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग। अदर व्यू वुड बी व्हाट, कि भाई ये रेक्टेंगल जोन में है, यहाँ से नीचे हैमर बनाया है वीकली, तो यहाँ से प्रोबेबल चांस है कि एटलीस्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन तक जाएगा, तो ये 15,900 तक जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन वहाँ पे बन रहा है। या कोई और बुलिश रहेगा तो बोले ये तो बहुत अच्छा है, मुझे नीचे बॉटम पे बाय करने का चांस मिल रहा है, आई विल बाय एंड विल होल्ड फॉर से 18,000 लेवल, ओके, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन 18,000 है, इजंट इट। तो ये सब चीज़ें रिलेटिव है। और सी, for what purpose you are taking an entry, it has to be very clear. If I'm talking about trading right now, I'm talking about trading, investing के बारे में हमने कभी बात की ही नहीं। तो अगर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पॉज, जहाँ पे आप कुछ पैसा बना के बाहर निकल जाते हैं। तो उस केस में आपको वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी। तो whatsoever may be the conditions there you are marking, what is working for you may not work for me, or vice versa. That's where I am explaining in a generic term, whatever I am using I will explain you कि भाई मैं ऐसे देखता हूँ, मैं वैसे देखता हूँ। You can adapt to or maybe learn over a period कि आपको कैसे उसको मार्क आउट करना है, ठीक है। अभी हम मैकडी की बात कर रहे थे, सो आई वाज सर्चिंग आउट फॉर मैकडी इंडिकेटर। उसके पहले मुझे RSI निकालना पड़ेगा। मैं रिवॉन निकाल देते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं। यहाँ पे ये देखिए जी, MACD लग गया। RSI को हम छुपा देते हैं। देखिए ऐसा दिख रहा है तो RSI डिलीट ही मारना पड़ेगा। हाँ जी, क्या दिख रहा है MACD को लेके? सर सेम मैं थोड़ा एबीसी लाइन पे करिए जो अभी मैं जो पिछला आपने समझाया उसका एक क्वेश्चन है। करेक्ट। जैसे आप ये आपने बनाया ये जो जोन बनाया है रेक्टेंगुलर जोन में, जी आप पॉइंट ए को देखिए, पॉइंट ए और जहां से आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, राइट। ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट वो टॉप में जी, एक तरह से डबल टॉप बन रहा है, बन ओके, रहा है, हाँ। ठीक है। और नीचे में अगर एमएससीडी देख रहा हूँ, ठीक है, एमएससीडी से अगर वही उसी टॉप लाइन से यहाँ बाय कर रहा हूँ तो ये एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली यहाँ से सेल ये करना है। वाली। हाँ यहाँ से तो ये एक डाइवर्जेंस हो सकता है ना। ये है ही ना डाइवर्जेंस, माने अब ये टॉप पे, मतलब क्या बताना टॉप पे चाहते हैं? टॉप पे टॉप पे आप देखें तो एक तरह से फ्लैट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर कि यहाँ पर? इस टॉप को मिलाते हो, चेंज करता है, मतलब पॉइंट ए से लेके जहां से आपने इनिशिएट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इज इट? यहाँ तक, हाँ ठीक है। सपोज मैंने कोई बाई करके यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, सपोज मेरे पास कोई ट्रेड पड़ा हुआ है और इस पे ए तक मैं जा रहा हूँ, ओके। जी, अब मुझे इस ट्रेंड में यहाँ पे डाइवर्जेंस तो दिखा नीचे से एमएससीडी में, ये यहाँ से ये वाला ये डाउन, तो हाँ मिसिंग डाउन लग में गया, गया, हाँ हाँ हाँ, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड से इस जहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे यहाँ एमएससीडी का हुआ है, क्रॉसओवर जो, हाँ यहाँ भी नीचे भी हुआ है सर एक। यहाँ पर। अगर मैं यहाँ नहीं निकल पाता हूँ तो क्या यहाँ निकलना रहेगा सही? वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, तुम किस पर्पस से उसमें या तो इन्वेस्टेड हो या ट्रेड कर रहे हो, इट इज़ अप टू यू। जब कभी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए: एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट एंड टाइम फ्रेम। सर ट्रेड टाइम कर रहे फ्रेम का हो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? टाइम फ्रेम का समझ में आता है। भाई साहब, लास्ट वीक में मैंने जितने भी मैं जो बताया लास्ट वीक था, नहीं था एक्चुअली सर, मैं नाइट था तो मैं आया नहीं था। कोई बात नहीं, तो उसमें मैं मतलब अलग अलग पैटर्न्स के हिसाब से मैंने ट्रेडिंग के मैकेनिक्स बताए थे, मैकेनिज्म्स बताए थे, और वहाँ पे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस एंड फ्रेम ऑफ टाइम भी बताया था। उसके पहले हमने वो जो हेड एंड शोल्डर वाला कहानी देखा था, राइट, उसमें भी टाइम जोन मैंने कितने टाइम में वो अचीव हो सकता है, वो प्रेडिक्टेड चीज़ें बताई थी। तो वो उस हिसाब से आप कर सकते हो। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द
the low or the top of the stock, any stock, but you just only predict upon the specified stipulated patterns, specified conditions in the market, whether it can be achieved in a so-called this much time frame. If you are able to carry your trade for that period, then you can at least achieve what you have targeted for. ऐसा assume कर सकते हैं. There is no 100% surety about you will reach within the time frame or out of the time frame, within your target or out of your target. It is nearer to that. 80-90% आपकी एक्यूरेसी हो सकती है, उससे ज़्यादा किसी मतलब 80-90 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट एनीवेज दैट इज़ हाउ यू हैव टू सी. आप तो पर्पस पता होना चाहिए. आइदर यू आर इन्वेस्टेड इन और यू आर ट्रेडिंग इट, और इफ़ यू आर ट्रेडिंग यू मस्ट हैव दिस 4 कंडीशंस अवेलेबल. ऑन वीकली चार्ट इट्स अ इन्वर्टेड हैमर, अगर कोई देख भी रहा है तो. अब आप डेली में जाओगे ना, आपको और क्लैरिटी आएगी. जहाँ पे ये पहला बना था कंडीशन, दिस वॉज द फर्स्ट कंडीशन, व्हाट हैपेंड देयर ऑन द डेली चार्ट. दिस वाज द कंडीशन, यू कैन नॉट सी. यहाँ पे भी डेली पे हैमर था, देयर वाज अ हैमर, अगेन देयर वाज डबल बॉटम और डबल टॉप, देन देयर इज अ मैकडी डाइवर्जेंस. उसके अलावा मान लो कोई यहाँ पे री एंट्री सिग्नल बनता है ऐसे. अभी डेली में आपको दिखेगा नहीं ये सब चीज़, तो कैसे आप ट्रेड करोगे बताओ. मैकडी के डेली के बेस पे क्या ट्रेड करोगे इसमें. ये 2 बार ऐड हो गया क्या. आई सी, सो इट इज लुकिंग दिस वे. अब आप कोई डेली में इसको ट्रेड करना चाहे तो कहाँ एंट्री मिलेगी. सेल एंट्री ये यहाँ पर एंट्री एंट्री, मिलेगी. हाँ यहाँ एंट्री मिलनी चाहिए. हाँ जी, तो यहाँ एंट्री मिली, एग्जिट कहाँ लेगा. यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, हम्म यहाँ पे एग्जिट लेगा. बशर्ते आप किसी ने यहाँ एंट्री ली, ये सेल एंट्री है, इसके नीचे कोई इसके नीचे मान लो सेल एंट्री बनती है बराबर. हम्म और मान लो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे एग्जिट बनता है. दिस कैंडल वुड बी द डिसिसिव कैंडल, शायद ये वाली. इसके हाई के ऊपर एग्जिट मिल गया क्योंकि तुमने मैकडी क्रॉस ओवर देख लिया. दिस इज हाउ द सिंपल लुकिंग ट्रेड्स आर सीन. अब मैकडी के बेस पे आपने ट्रेड लिया है तो तुम्हारा रूल सेट डिफाइंड होना चाहिए. मेरा मैकडी जब कभी नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर हुआ मेरा एग्जिट हो जाएगा. मेरा मैकडी का क्रॉस ओवर डाउन द लाइन हुआ तो मेरा एंट्री हो जाएगा. इसके बीच में स्टॉप लॉसेस तो हज़ारों हिट होंगे. सी दिस जोन. और ये भी बताया था कि मैकडी सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग कंडीशंस में ही काम करता है. इसमें देखो यहाँ एंट्री बना, यहाँ पे क्रॉस ओवर एंट्री बना तो यहाँ पे एग्जिट तुरंत आ गया. यहाँ पे अगर कोई एंट्री लेता, मान लो इसके नीचे भी एंट्री लेता या इसके नीचे सेल एंट्री कोई लेता बराबर, यहाँ पे मैकडी का क्लियर कट सेल सिग्नल जनरेट हुआ. कोई एंट्री तो उसका स्टॉप लॉस हिट होना नेचुरल है. क्योंकि दिस इंडिकेटर ओनली वर्क्स फॉर मोमेंटम सिनारियो. अब कोई मैकडी के स्पेसिफिक ही एंट्री एग्जिट मारेगा तो उसके स्टॉप लॉस हिट होना नेचुरल है. फिर से बता रहा हूँ, तो इंडिकेटर्स आर नॉट एक्चुअली working out for your conditions to decide to take entry or exit. They can help you out to see through upon entry, upon point of interconnect or point of confluence. अभी जैसे मैंने एक ट्रेड बताया था, स्टिल आई एम देयर, सीजी पावर का एक ट्रेड लिया हुआ है मैंने. नाउ सी करंट स्टेट में सीजी पावर ट्रेड इज, अभी तो मैकडी उसका कन्वर्ज हो ही रहा है, अभी तक हुआ नहीं है. कोई बता सकता है ये ट्रेड कैसे बन रहा है अभी. इसमें एक तो सर ये एक डबल बॉटम भी है. नीचे जो एमएससीडी है, नीचे देखिए सर, ये नीचे क्रॉसओवर दे रहा है यहाँ पे. कहाँ हुआ है क्या अभी. अभी अभी हुआ नहीं है, बन रहा है, वो क्रॉसओवर बन रहा है. हाँ तो बन रहा है, आई बन अंडरस्टैंड. रहा है. और इसमें एक चीज और है, इसमें जो जो डबल बॉटम का भी वो दिख रहा है इसमें लंबे टाइम पीरियड में. डबल बॉटम दिख रहा है, बताओ हाँ. कौन सा डबल बॉटम है. अभी आपने करा किया था ना सर, एक मिनट बड़ा करिए सर इसको. सॉरी, बड़ा कर देते हैं. लो आप यहाँ पे देखो सर, जहाँ से कंसोलिडेट हुआ है ये लाइन और ए लाइन. डार्क ब्लैक लाइन है भाई. हाँ, डार्क ब्लैक लाइन है. तो अगर मैं हाँ इस पॉइंट को कवर करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉटम बन रही है सारी. 1 2
3 4 ऐसा। हाँ हाँ, इसमें सपोर्ट लाइंस हैं, इस पे इसी पे टिका हुआ है, तो इसको डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पे, आप ये देखिए, ये जो नीचे, ये जो छोटे का एक रेड कैंडल के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, हाँ। तो ये पियर्सिंग काइंड ऑफ थिंग है सर ये। कौन सा पियर्सिंग, कुछ भी नाम बोलते हो भाई, बताएगा ये कौन सा टाइप है, ये टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है? एंगल्फिंग हुआ है सर, एक कैंडल दे हाँ, रही इनगल्फिंग, इनगल्फ किया, राइट, हाँ। ये बुलिश एनगल्फिंग है ना? इनगल्फ, हाँ। व्हाट आर द कंडीशंस वी लर्न? कांस्टेंट डाउन ट्रेंड, एक रेड सिग्नल के बाद बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, पूरा ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड को खा जाएगा, पूरा खा जाना इनगल्फ, हाँ। चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हाई टू लो ऑफ प्रीवियस कैंडल इज एंगल्फ, दैट्स वेयर द एंगल्फिंग सिग्नल जनरेट्स। एंट्री कहाँ है? इस एंगल्फिंग के सिग्नल के लाइन के ऊपर एंट्री है। स्टॉप लॉस कहाँ है? इस कैंडल के 1% नीचे, दिस इज द स्टॉप लॉस 630 के आसपास का, मान लेते मैं इतना ही गिन लेता हूँ। और एग्जिट कहाँ है? टारगेट 1 टारगेट 2, दैट व्हाट वी सी हाई प्लस लो ऑफ ओवरऑल 2 कैंडल्स हाई प्लस लो सिनारी। तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाई थी। तो ये हाई लो का मिड पॉइंट है जहाँ से आप T1 और T2 सब जनरेट कर रहे हो। ठीक है, ये T1 T2 जनरेट हुआ है, सी दिस। तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है इसका। दिस इज़ व्हाट नॉर्मल थिंग। अब इसमें कहाँ मैकडी क्रॉस ओवर हो रहा है? अभी तो हुआ ही नहीं है ना। मैगडी नहीं हुआ है, फिर लेकिन अब सर इसमें जो T1 आपने जो बनाया है, T1 इसका ठीक है, T1 यहाँ वाले सपोर्ट पे जाएगा, राइट। सपोर्ट की बात नहीं, T1 ये जो हाई है ना, लो टू हाई, हाँ इसको क्लोन करके मिडल से ऊपर ले लिया है, एक क्लोन किया, हाँ। ये वैल्यू ये मिड पॉइंट से उतना ऊपर, ये T1 हो गया, यहाँ से ये मिड पॉइंट से हम्म ऊपर, सेम चीज़ वापस क्लोन किया उस जोन से, और उस जोन से उतना ऊपर, ये T2 हुआ। दैट इज़ नथिंग, मैं अपना दिमाग लगाता ही नहीं इन सब चीज़ों में। अब ये ट्रेड कितना लंबा चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, इट डिपेंड्स, इजंट इट? ये महीने में 15 दिन तो निकल गए, मान लो कोई ने ये महीने का फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेड किया इस जोन के लिए, तो कहाँ तक वो जाएगा, अगर जाएगा तो कितने टाइम में जाएगा, वो सब डिसीजंस इंडिविजुअल्स के ऊपर है। कैसे ट्रेड कर रहे हो वो, कि कौन से बेसिस पे, मतलब कैश में ट्रेड कर रहे हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, इट डिपेंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इजंट इट? तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिकेटर्स आर जस्ट इंडिकेटर्स, दे कैन कन्फ्लुएंस, दे कैन कन्फर्म योर ट्रेड्स, बट दे कैन नेवर बी यूज फॉर योर एंट्री और एग्जिट सिनारियो। हर एक इंडिकेटर का खुद का वेटेज है, लिमिटेशंस है, ओके? तो मैकडी का लिमिटेशंस क्या है कि वो ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए ही काम करता है। अगर साइडवेज वाला स्टॉक है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। ईएमए किसके लिए काम करता है? ईएमए काम करता है आपके लॉन्ग टर्म क्रॉस ओवर पे संगम से, या तो कोई आपका फ्लैग जनरेट हो रहा है या कोई भी दूसरा टाइप का सिग्नल जनरेट हो रहा है, उसको कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे ईएमए निकाल दिया मैंने, कौन सा था इंडिकेटर ईएमए का? इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग सिंपल मूविंग एवरेजेस के, देखो यहाँ पे आपके सामने मैं चेंज करता हूँ सब सेटिंग। इनपुट्स में आप देखेंगे तो ऐसे में सिलेक्टेड है, मैं ई में हमने क्या क्लोजिंग पहला 5 का रखा, उसका कलर ग्रीन रखा, ठीक है। मूविंग एवरेज 2 13, उसका करंट कलर ये जामली मेजेंटा में, तीसरा सॉरी ई में रखा रेड कलर का, उसका कलर है 26 या 23 का, 26 लिख लेते हैं। और चौथा सिंपल है उसका 200, उसका रखा मैरून कलर, मैरून कौन सा है, शायद ये है, उसका वेटेज चेंज कर दिया स्टाइल में, यहाँ पे जाके जाना, दैट्स इट।
दिस आर द सेटिंग्स. दिस इज अभी इसमें मूविंग एवरेज बेसिस पे क्या दिखता है, दैट यू कैन नॉट एक्चुअली सी, है ना. अगर मूविंग एवरेज कोई लगाएगा क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा. क्या कुछ गाइस, कैन यू सी? नहीं. कुछ भी नहीं दिखेगा. दैट्स हाउ. अब यहाँ पे कोई किसी को सिग्नल मतलब कोई किसी ने फ्लैग वीक बना, हाँ यहाँ पे फ्लैग था ही, मैंने पहले भी बताया था. दिस वॉज अ शॉर्ट सिग्नल. ये 2-3 कंडीशन को मीट कर रहा था. दिस सिग्नल वॉज मीटिंग 2-3 कंडीशंस. आप मैकडी देख लो, आरएसआई देख लो, फ्लैग देख लो, उसके सभी कंडीशंस ये मैच. यहाँ पे वॉल्यूम का चार्ट नहीं है. अब इंसर्ट वॉल्यूम. वॉल्यूम इज़ माई प्राइम चार्ट टू सी. तो मेरे चार्ट पे 3 चीज़ें रहती है. क्या रहती है? वॉल्यूम, आरएसआई और मूविंग एवरेजेस. ये सेटिंग्स जो अभी दिखा है, देखिए मूविंग एवरेजेस में ये संगम दिख रहा है, संगम का ब्रेकआउट. आपके फ्लैग ब्रेकआउट का प्रॉपर कंडीशनिंग हुआ है विद वॉल्यूम. यू सी द मैगडी डाइवर्जेंस. दिस आर द कन्फ्लुएंसिंग थिंग्स. आपको कोई भी एक चीज़ समझ में आनी चाहिए. आपको फ्लैग समझ में आता है तो जब कभी आप सही मायने में उसको देखोगे तब आपकी सभी चीज़ें इनलाइन होगी. जैसे यहाँ पे ये में भी क्रॉस ओवर दे रही है, मैकडी भी क्रॉस ओवर दे रहा है. आरएसआई देखोगे तो आरएसआई में भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. तो मेरा कहना है, और दीज थिंग्स लीड्स टू ओनली वन destination, that is your set targets or else the set stop losses, nothing else. समझ में आ रहा है? तो indicators, don't get confused with indicators. They just can give you extra confirmation. You cannot trade basis the indicators for longer period. They are more confusing than giving a right signals. Okay, you have to make out the things whether they are in your side or in your way, at your side or away from your side. Okay, तो मैं फिर से बार बार यही बता रहा हूँ यार. आपके मतलब आपके प्रेडिक्शन को और मजबूत करने के लिए यूज़ करो, बट नॉट फॉर एंट्री और एग्जिट्स. ठीक है जी. सो आज के सेशन में इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने डिटेलिंग की. नाउ इफ़ आई सी, 2 स्टॉक्स मैंने दिए थे. एक दिया था इंडस टावर्स. क्या इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है? गाइस, नहीं हुआ है सर अभी. हुआ है? नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ है? फ्लैग के बॉटम से नीचे था ना सर. मैंने तो यह रखा है स्टॉप लॉस. जो एक्चुअली अपना होना चाहिए वो फ्लैग के बॉटम से स्टॉप लॉस नीचे रखना है ना. नहीं, ये इस कैंडल के हाफ से 2% नीचे. ओके. ब्रेकआउट कैंडल ब्रेकआउट के कैंडल से, सॉरी. हाफ हाँ, से ब्रेकआउट कैंडल. 2% नीचे. दूसरा स्टॉक कौन सा था? आई ऑल्सो गिव अनदर स्टॉक. भारत फोर्ज. नहीं, भारत फोर्ज में कहाँ फ्लैग था? और रुक जाओ, मेरे इसमें मिल जाएगा. जस्ट अ मिनट. हिंदुस्तान कॉपर था, हिंदुस्तान कॉपर. हाँ, हिंदुस्तान कॉपर ही था. एक इंडस टावर, एक हिंदुस्तान कॉपर. So the second stock was Hindustan Copper. उसमें क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ है? नहीं. स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये लाइन.
है ना? कैसे? हाउ वी आर डिफाइनिंग स्टॉप लॉस? जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके उसका मिड पॉइंट से 2% नीचे 2% नीचे है। ये हाँ। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, एंट्री हाँ, कंफर्म्ड हाँ। है, still one can buy this stock to ride on the momentum. Okay, तो your entry is confirmed. इसके ऊपर तो एंट्री ऑलरेडी मिल चुकी है, पर स्टिल somebody wants to buy it, can buy with the kind of scenario. ये एक चीज बताओ, हिंदुस्तान कॉपर को क्या लॉन्ग टर्म के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अभी लाइक कंसिडरिंग द जिंक विंक कॉपर? जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर रहता है. जिंक, सिल्वर, कॉपर, द इन्फ्लुएंस इज नॉट इंडियन मार्केट हियर. ओके, सो ओके। वो इंटरनेशनल के हिसाब से आप देख सकते हो उसको. वैसे भी ये टारगेट जोन के पास, मतलब ऑल टाइम हाई समझ लो या प्रीवियस टॉप के ऊपर के आसपास ही टारगेट बैठ रहा होगा, उसके आसपास ही होगा ये और प्रीवियस हाई है ना? सो व्हाट्स योर, आपको कैसे देखना है? इफ़ यू वांट टू रियली इन्वेस्ट इन टू, तो तुम कभी भी बॉटम नहीं पकड़ सकते, माइंड इट वेल, बट यू कैन हम्म। ऑलवेज राइड अपॉन वेर एवर यू आर एंटरिंग. इट विल गिव यू मल्टीपल एंट्रीज. जैसे मान लो किसी ने इस जोन में पकड़ा होता तो री एंट्री यहाँ पे कर सकता था इस जोन में, ठीक है? फिर वापस कोई री एंट्री जोन किसको यहाँ मिला होगा, मान लो किसी ने और एंट्री मारी, तो all gains would have been almost nullified because of this relative down rally. But that is again a temporary thing if somebody one is invested for a longer period. कितना टाइम का वनवास रहा? अगर यहाँ से देखेंगे, मान लो री एंट्री मार ली बेसिस डिफरेंट कंडीशंस, तो ऑलमोस्ट सितंबर 24 से लेके मिड ऑफ अप्रैल या एक साल तक रहेगा, मैक्सिमम एक साल का वनवास रहा. बट फिर वो एवरेज पॉजिटिव गेन में. तो अगर लॉन्ग टर्म की गेम सोचते हो ना, तो यू कैन टेक मल्टीपल एंट्रीज इन अ सिंगल स्टॉक. ठीक है, इतना सिंपल है. बट इफ यू डिसाइडेड वेदर से आई एम वेरी बुलिश अबाउट दैट जियो फाइनेंस, ओके, वो उसका एंट्री एग्जिट अभी अभी तो वो कंसोलिडेशन में चल रहा है. बट यू सी देर आर डिफरेंट कंडीशंस हैपनिंग. ये वीकली चार्ट है, ये रेंज ब्रेकआउट के बाद कप एंड हैंडल बना, उसका रीटेस्टिंग हुआ, वापिस ऊपर नहीं गया, वापिस वो कंसोलिडेशन जोन में. हो सकता है ये कप का ये हैंडल बन रहा है. ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. ये कप नहीं है, पर ये कप है, यहाँ से लेके अरे यहाँ तक का कप है, और उसका ये हैंडल है. दिस वन इज़ अ हैंडल बड़ा सा, एंड देन इट इज़ गोइंग अपवर्ड. बट दिस इज हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द गेम. ये वीकली चार्ट है. अभी डेली में क्या दिख रहा है? डेली में ऐसा दिख रहा है. इज देयर एनी एंट्री हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैकडी, ऑन द बेसिस ऑफ योर इंडिकेटर? नो, इट इज़ जस्ट अ स्टडी. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स. एंड अगेन, जैसे हिंदुस्तान कॉपर में अभी हमको एंट्री मिली है, तो अगर आप ट्रेड भी करोगे तो इट हैज़ टू हैव, आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते रुकना पड़ेगा. एंड दैट फॉर दैट रीज़न आपको ये भी देखना है कि भाई आप कहाँ तक वेट कर पाओगे, और या ऐसे किसी स्टॉक में ट्रेड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इजंट इट? तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो ये मैं मैकडी निकाल के RSI लगा देता हूँ. RSI दुनिया में फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने तरीके से मार मचोड़ कर सकते हो. ऐसे में ठीक है, मेरा क्लोजिंग ड्यूरेशन है ना, स्टाइल, इसके इनपुट्स कहाँ गए? 50 वैल्यूज़ कहाँ गई? ऐसे बाद में करता हूँ ये सब चीज़ें. बट दैट्स हाउ द थिंग इज. RSI को लेके 14 क्लोजिंग में मुझे 80-20 का एक इसमें है ही नहीं, दूसरा RSI तो यूज़ नहीं हो रहा है. एनी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑफ एवरीवन हियर.
आई मेक आउट दैट, यहाँ पे है 30 40 and 60, solid line बनेगा। अभी कोई पूछ सकता है कि आप भाई ये सेटिंग क्यों लगा रखे हैं, यूनिवर्सली नॉर्मल 30-70 है और आप ये यूज़ क्यों कर रहे हैं। लेट इट बी, मुझे इससे काफ़ी सारे इंसाइट्स मिलते हैं, तो आई एम यूज टू दिस विद मोमेंट्स और द डिटेल्स। और एज समवन वुड हैव टेल कि भाई इसकी जगह पे 70-30 क्यों नहीं यूज़ कर रहे, मेरे लिए काम करता है, तो आई एम मेकिंग आउट दिस थिंग। यहाँ पे और एक चीज़ दिखाऊँ आपके कंजम्पशन के लिए फॉर दिस स्टॉक, ये नेगेटिव और पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ये यहाँ से यहाँ पे अगर देखोगे, बट द ड्यूरेशन इज़ बिगर कंपेरेटिवली, सॉरी ये वाला, यहाँ से यहाँ देखोगे, ठीक है। दिस इज अ कन्फ्लुएंसिंग या तो confirmatory things around that it is not going to go further down because of the conditions, current conditions. There are so many things out of it, like a wave theory, wave 1 2 3 4 5, then there is ABC wave happening here, and then again there is a continuity, this is a bigger wave, उसमें भी ये वेव 2 है तो वेव 3 के बाद वेव 4 जाएगा, सब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप देखोगे तो टेक्निकल्स में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई। सो करंट कंडीशन में आई हैव गिवन 2 स्टॉक्स, नाउ यू सी डिफरेंट अदर स्टॉक्स विच आर सपोज टू बी अंडर कंसिडरेशन फॉर नेक्स्ट वीक। CCL प्रोडक्ट्स करके एक स्टॉक मेरे हाथ में लगा है, यू सी व्हाट यू सी ओवर हियर एवरीवन। सर इसमें तो फ्लैग पोल बनेगा सर यहाँ पे। कैसे पहला तो बनेगा, दो लोएस्ट ऑफ द पॉइंट इज दिस, हाँ, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, और दिस इज ये व्हाट यू सी एज अ ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल हम्म, बड़ी है हम्म, जैसी होनी इवन चाहिए। इवन ये नीचे जो है RSI भी सो 60 क्रॉस कर रहा है। अभी तो क्रॉस हुआ नहीं है, पर करेगा तब की बात तब है। हाँ करेगा, ब्रेकआउट कैंडल वॉल्यूम प्रॉपर है, वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है इसका। वॉल्यूम कंफर्म है, सिग्नल और कैंडल प्रॉपर है, तो कहाँ पर है स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेट हाफ से थोड़ा 2% नीचे, यहाँ पे स्टॉप लॉस 50 है। स्टॉप लॉस हाँ नीचे रख सकते हैं सर, ट्रेंड लाइन के पास। हाँ ये स्टॉप लॉस और एंट्री, आप बताओ भाई किसको कोई डाउट है ये सिग्नल में। नहीं डाउट है सर। इस इसका टाइम हॉरिजन कितना रहेगा सर, मान लीजिए कि इसमें जाना रहेगा भाई आप मेरे को चले टारगेट। रास्ते में भी बता देता हूँ, फिर भी प्राइस रेंज का मूवमेंट कितना एक्सपेक्टेड है, इतना, ये यहाँ से ये उतना 1208 1200 लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 1200 का टारगेट है इसका। CCL ये टारगेट है, हो गया फ्लैग डिफाइंड। टाइम फ्रेम है ये जो नंबर ऑफ कैंडल्स है बिटवीन स्टार्ट ऑफ द पोल टू द ब्रेकआउट, 42 बार्स आर देयर, 60 डेज, तो उसके 1/3 डेज में ये एक्सपेक्टेड है टारगेट। ये डेली चार्ट है तो डेली बेस पे कितने बाम्बू में आएगा, 20 डेज में आएगा ऐसा एक्सपेक्टेड है, तो हमें 20 डेज ना लिखते हुए अप्रोक्सीमेट 1 मंथ लिखेंगे, ठीक है जी। 1/3 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ ब्रेकआउट टिल पोल, ओके, फर्स्ट वन। देन देयर इज अनदर स्टॉक, जामना ऑटो, इसमें क्या है, किसी को कुछ आइडिया है। कुछ दिख रहा है, स्टॉक्स टू वॉच फॉर आपके नज़रिए में, मैं कैसे इससे डील करता हूँ। देखो जामना में यहाँ पे चुंबक ले लेंगे, क्या दिख रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है। अभी हमने पैटर्न्स देखी है, वीकली चार्ट है, डेली पे देखोगे और क्लियर दिखेगा, बताओ भाई। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। अरे करंट स्टेट में ये क्या बन रहा है, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, या फिर यहाँ से ले लो आप, या करंट स्टेट में क्या दिख रहा है,
कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है या हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है। हेड एंड शोल्डर का चार्ज अगर देखोगे तो शायद टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है यहाँ से लेके। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है हाँ वही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये यहाँ राइट से। हेड एंड शोल्डर तो नहीं, ये यहाँ राइट। हाई से अभी थोड़ा सा बाकी है। बराबर, ये ब्रेकआउट नेकलाइन है ना, नेकलाइन से ऊपर अपना चला जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेकलाइन है। ये तो दिस हाफ वे ऑलरेडी जा चुका है। जा चुका है, और दिस इज व्हाट यू कैन स्टडी जो सामने आया है। और फिर भी इट इज स्टिल इन एन अपट्रेंड, सो यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू ट्रेड इट और नॉट डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन। सी नाउ what is seen as a part of SMA, moving average, RSI, and so forth. What I see here, मेरे लिए क्या होता है, मैं देखता हूँ RSI 60 के ऊपर जाने के बाद वापस कन्वर्ज होके ऊपर जा रहा है। दिस इज़ द री एंट्री पॉइंट वेयर इट इज़ अगेन टचिंग द 60 वैल्यू। So this was a signal. It is again giving a re-entry. As already momentum is built up, so there are likely chances it will go and hit the target. मेरा है प्रोबेबिलिटी गेम, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी मैं रिवाइज करूँगा कि भाई इस ये रेड कैंडल या तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल है उसके नीचे मुझे स्टॉप लॉस रखना है, एंड मेरा टारगेट मैं राइड करूँगा। इन केस टारगेट इट हिट्स आई ट्रेल द टारगेट ऐसा। ठीक में क्योंकि ऊपर उसका जो हाई है ना, प्रीवियस हाई, ये लंबा है, इट इज़ अ लॉन्गर पीरियड। यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज स्टिल गैप लेफ्ट आउट। बराबर है, मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। ये ऐसे देखेंगे तो प्रीवियस हाई के ऊपर ये वैसे तो बहुत सारे टॉप्स है यहाँ पे, और दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, और इसी में क्लटर है, यहाँ पे एक्चुअली क्लटर है, तो इस जोन में आपका टारगेट हिट हो जाता है। दिस इज़ हाउ द जामना ऑटो इज। देन सिटी यूनियन बैंक, ये बहुत बार ट्रेड किया है। ये देखिए CUV में क्या दिख रहा है करंट स्टेट में। एनीबॉडी? और सिटी यूनियन बैंक इतना ऊपर चला गया, 132 में था मेरे पास। ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, उसके बाद अभी नीचे आया ही नहीं है, तो इट इज स्टिल वीकली कंसोलिडेशन में है, पर डेली में उसका ट्रेजेक्टरी चेंज हो रहा है। एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, और ये सो कॉल्ड इट इज़ नॉट एक्चुअली राइट फ्लैग के लिए ये जो कपड़ा है वो बड़ा होना चाहिए। तो करंट स्टेट में देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज सो कॉल्ड फ्लैग, बट इफ़ समवन हैज़ टू करना ही है तो ये ऐसा करके कुछ बना सकते हैं, अदरवाइज यू नीड टू वेट फॉर प्रॉपर डिसीजंस। दिस इज़ नॉट एक्चुअली राइट फ्लैग, यहाँ से फ्लैग बनेगा ऐसे। ओके ये अगर क्लोजिंग सभी क्लोज पकड़ लेंगे तो दिस हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट। सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पे करंट स्टेट में वॉल्यूम भी है। ओके यहाँ वॉल्यूम है रिलेटिवली, बट इज इट कन्फर्मेटरी? नो, नॉट येट। देन एक और है, बहुत सारे हैं भाई करंट, मतलब लास्ट वीक में सभी एल्यूमिनियम स्टॉक्स ऊपर गए। इंडाल को देख लो, ये सब देख लो, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक पे चला गया। आई एम स्टडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, क्या दिख रहा है? ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, उसके बाद रिटेस्ट और वापस ऊपर, तो ये प्रॉपर एंट्री के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। नाउ सी 60 डाइवर्जेंस के बाद एक बड़ा सा बुल सिग्नल है, इट इज़, मैं इसमें एंट्री लूँगा आउट ऑफ द ऑल सजेस्टेड स्टॉक। इफ समवन हैज़ टू टेक एन एंट्री, दिस इज़ द स्टॉक और ट्रेडिंग इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो देर आर दिस आर डिफरेंट थिंग्स आई एम लुकिंग एट। सो फार एज द इंडिकेटर्स, RSI और ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। एनीथिंग टिल नाउ शुड आई be covering, or something which I need to make you understand about basics of the trade, basics of these things, like how the basic patterns happens, how flags works, how head and shoulder works, how all time high breakout works, and so forth. Anything? अभी तक तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ है। So what is, I mean, आपके लिए स्टडी क्या क्या सिनारियो है? हाँ, मैंने और चीज़ें नहीं बताई कि भाई ये कैसे निकालेंगे। देर आर स्क्रीनर्स अवेलेबल। I shared the screener on the
group. You just copy paste in your laptop, phone, and see out whether these are working for you to find out what. Find out the stocks basis golden crossover, basis which are having a right set of momentum, on the basis of crossing MACD. There are so many screeners available. I have there are a couple of which I also look out for taking out the stocks for next week study. Okay, तो ऐसे बेसिस के लिए मैं आपके साथ स्क्रीनर शेयर कर दूँगा। और हाँ, आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। ये फिर से मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा, पर मेरा फ्रेंड का एक एडवाइजरी है, इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट विथ फॉर म्यूचुअल फंड सिनारियो, वी कैन कनेक्ट. I don't have personal interest into it, but that's what the case is, where 3HC is corresponding to one of the H from him, even Himanshu Vyas. Okay, this is all about today's session. I hope this has been lucrative, fruitful for you to understand how the indicators works. उसके बाद आपको और कोई टॉपिक कवर करना है टेक्निकल्स में, देन आई विल मेक आउट भाई साइकोलॉजिकली आपको कैसे देना है. नेक्स्ट सेशन विल बी मोर और लेस ऑन द फ्रंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन दैट डायरेक्शन. Later on, if someone has to understand futures and options and other things, I will cover that as well. But the next topic will be this investment कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, जो जिसमें आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो. प्रॉफिटेबल बनने के तरीके क्या होते हैं. ओके, अच्छा, मैंने आपको एक मैसेज किया है इसमें एमएससीडी का, जो आशीष ने एक पॉइंट किया था ना कि जेरोडा में जब हमारा एमएससीडी का लाइन नीचे की तरफ भी आता है, वहां पे भी हमको ग्रीन कैंडल्स दिखते हैं, या ऊपर के तरफ भी जब क्रॉसओवर होता है ना तो वहां पे रेड कैंडल्स. तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है. आपके वाले में आपने जो दिखाया था, इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि ऊपर जा रहा है तो एकदम ग्रीन कैंडल्स है, लाइट ग्रीन, ग्रीन, विच इज मोर ऑफ अ कंफर्मेटरी, और नीचे की तरफ भी ऑन लाइटर रेड या जो भी है, ठीक है. बट हम जब वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसमें जब हम एमएससीडी का वो देख रहे हैं चार्ट, तो उसमें ना ये नीचे में भी ग्रीन कैंडल्स दिख रहा है. तो इसमें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. इज इट नहीं, कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है. सी दैट वेन एवर देर आर MACD बिलो ज़ीरो, द ओके, मोमेंटम इज डाउनवर्ड्स. ठीक है, इतना समझ ओके, लो. जहाँ पे आपको अच्छा, रेड कैंडल्स दिख रहे हैं ना, हाँ, those candles are showing that on that day the actual market has closed in red. मतलब ओके, प्राइस ओके, क्लोजिंग जो है रेड में हुआ है. But again, still, if there are green candles, till the momentum is crossing that zero line, जो बाम्बूज है, वो जब तक जीरो के ऊपर ग्रीन में क्लोज नहीं होता है तब तक वहाँ पे मोमेंटम चेंज नहीं होता है. बराबर जो तुमने ओके, ओके, अदानी ग्रीन का दिखाया है, हाँ, हाँ, उसमें आप देखोगे तो अभी भी जो सिग्नल कैंडल को MACD अभी नीचे से ऊपर काटने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल मोमेंटम बाम्बू या तो जो हिस्टोग्राम है उसमें कहीं पे भी ज़ीरो के ऊपर कोई कैंडल नहीं दिख रहा है. दैट मीन्स इट इज़ स्टिल इन अ सेलिंग जोन या तो इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड. मैंने पहले भी इसको यही बताया, किसको, अपना शशि ने भी सेम क्वेश्चन किया था. ओके, So, any whatever platform you are using, don't get confused. Be very clear. MACD मैंने पहले ही बताया क्या कंडीशंस है MACD में. MACD is used only in a directive scenario. It is just giving confirmation, not a recommendation to buy or sell basis the MACD. It is just a confirmatory signal that you can see. हाँ, अभी मैंने बोलिंजर बैंड्स के बारे में नहीं बताया है, बट विल कवर इट लेटर ऑन. तो आज के दिन के लिए इतने इंडिकेटर्स काफ़ी है, आई थिंक सो. बोलिंजर बैंड्स है, फिर तो और भी सारी चीज़ें हैं, फिबोनाची के रेंजेस है, ओके, वेव थियरीज है. देयर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन वर्क आउट विथ.
जो सिंपल है उसके ऊपर फोकस करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने जाओगे तो कमाने की जगह गंवाओगे ज़्यादा. देयर इज़ नो मीनिंग अबाउट मेकिंग सो मेनी थिंग्स एंड डूइंग खिचड़ी ऑल टुगेदर, एंड खिचड़ी विल ओनली सेव योर स्टमक, नॉट द मार्केट. आपके लिए मार्केट में उस खिचड़ी काम नहीं करता है. okay? किसी के लिए भी, मेरे लिए भी नहीं करता है. सो जितना सिंपल होगा अंडरस्टैंडिंग, जितना कन्फर्मेटरी, जितना बेसिक होगा, उतना आपके पास चांस है बढ़ने का. एनीवेज, तो वो जो रेड कैंडल्स इसलिए दिख रहे हैं, उस दिन रेड में प्राइस क्लोज हुआ, और ग्रीन कैंडल्स इसलिए दिख रहे हैं ग्रीन में प्राइस क्लोज हुआ है. दैट Okay. डजंट मीन दैट इट हैज चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम. हिस्टोग्राम अगर हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर है तो मोमेंटम पॉजिटिव है, हिस्टोग्राम जीरो के नीचे है तो मोमेंटम नेगेटिव है, Okay. is Okay. respect to the color of the candles. Fine. Any other things? Any other thing to know so far as the topic is concerned? Okay. So okay, this session is now getting. मैं stop recording कर रहा हूँ.